Good morning everyone. Welcome to my class of economics. I'm Akansha and today I'm going to take the chapter Challenges of Indian Economy of class 10th. Okay. In the last class we studied about sectoral aspect of economy. In this class we are going to learn about the challenges, means which are the challenges that India is facing. So can you tell me what are the challenges? Number one is poverty, okay, then unemployment, then what all other problems India is facing other than problem of unemployment, poverty, education, isn't it? Then health and yes, price rise. These are all the problems. Okay. So today we are going to discuss mainly these 5 problems and what are the steps government is taking. How see these problems you all are very much aware of कि ये सब problems होती हैं, इनके क्या कारण होते हैं, ये पहले भी हम discuss कर चुके हैं. Now in this class we are not going to discuss what are these problems, but what are the government's steps to eradicate all these problems. So first of all, poverty, we say for poverty eradication government has launched many schemes. The most famous one is the Mahatma Gandhi National Rural Employment scheme. In short, it is known as Manrega. Okay, MNREGAS. Okay, so this was launched in 2006 and it aimed at providing employment in the rural sector. Sabko rozgar, sabka vikas. Okay, so that was the slogan and the scheme was launched in 2006. फिर उसके बाद आई आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. Okay, and it was launched in 1999 and then स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. By the name it means for urban areas. ठीक है, तो मेनली ये 3 स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की और ये लास्ट में 1997 में लॉन्च की गई एंड ये सारी स्कीम्स में पुअर्स को ट्रेनिंग दी गई एंड हाउ टू गेट एम्प्लॉयमेंट टू मेक देम स्किल्स, ये योजनाएं शुरू हुई. सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की, जैसे राइट टू एजुकेशन, अप टू 5 years फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बना दिया गया है. राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ही पास कर दिया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. फिर ये हुआ कि अप टू 5th तो बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े 8th क्लास का में आते आते दे यूज्ड टू लीव द स्कूल. Okay, because up to 5th it was free. Then for higher education, for middle education, they started schemes of elementary and secondary education. Schemes for elementary and secondary. Secondary क्लास कहाँ तक होती है?
10th, ठीक है। तो फिर आगे की पढ़ाई के लिए भी किया गया, और इसको लॉन्च करने के लिए भी कई बीच में स्कीम्स आई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, देन नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स, क्योंकि पुअर सेक्टर में बच्चों को जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो क्या करते थे पुअर पीपल, दे वांटेड हेल्पिंग हैंड, मजदूरी कराना। तो उस और क्यों, क्योंकि खाने की कमी होती थी, तो खाने की कमी की वजह से उनसे मेहनत, उनको पढ़ाई छुड़वा के उनको काम पे लगाया जाता था। ओके, सो इन ऑर्डर टू इरेडिकेट ऑल दिस थिंग, मिड डे मील वाला सिस्टम भी चालू किया। देन इसके अलावा सरकार ने क्या किया कि प्रोग्राम फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ये लॉन्च किया, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज भी ज़्यादातर जितने भी आपके टेक्निकल एजुकेशन है वो गवर्नमेंट के हैंड में है, IIT, IIM, ओके, ऑल दीज आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। सो प्रोग्राम फॉर हायर and technical education, so that जो bright students हैं and those who want technical education, चाहे वो आपकी मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, द मोस्ट एलीट वन आर by the government, so that it can be with a minimum cost, or it can be afforded, and everyone should get a technical education, ठीक है। फिर इसके बाद सरकार ने एजुकेशन, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, these are educational policies, okay। And this one is poverty as well as employment generation programs, okay। पॉवर्टी एलिवेट कैसे होगी, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स यू कैन से। okay, and these are all for educational policies that government has launched. After this comes health care, okay। हेल्थ इज अनदर सेक्टर। हेल्थ में भी अगर एक देश को उन्नति के रास्ते पे लाना है या डेवलप्ड बनाना है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है, हेल्थ है, इजंट इट। अभी कोविड के टाइम पे यू ऑल मस्ट बी ऑब्जर्विंग हाउ मच हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, कि पूरा लॉकडाउन लग गया, एवरीबडी वॉज इनसाइड द हाउस बिकॉज हेल्थ इज द प्रायोरिटी, एवरीबडी हैज रियलाइज दिस, एंड नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन सो मेनी स्टेप्स फॉर हेल्थ ऑल्सो विच वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, ओके। सो हेल्थ में जो स्कीम्स आई उसमें नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम, ज़्यादातर स्कीम्स शुरू की जाती है रूरल एरिया से। क्यों की जाती है? क्योंकि what is the reason behind this? Because rural sectors doesn't have many facilities, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, इसीलिए बीच में भी मेडिकल से जो बच्चे निकल जाते थे उनको बीच में ये भी किया गया कि 3 साल विलेजेस में आपको सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हैं और कोई जाना नहीं चाहता, सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्टेप्स एंड दे हैव टू लॉन्च द स्कीम्स। फिर जननी सुरक्षा योजना, एज द नेम सजेस्ट, किसके लिए बनाई गई होगी ये? मदर्स के लिए। जननी मीन्स मदर। देन उनकी हेल्थ को लेके बनाई गई। फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म है PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ओके। एंड देन नेशनल एड्स कंट्रोल, नेशनल एड्स कंट्रोल। सो अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुविधाएं प्रोवाइड करती है।
क्लियर। लेकिन क्या है, कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि हाँ ये इलाज जो हैं फ्री में भी होते हैं, एंड नोबडी वांट्स टू टेक पेन ऑफ दोज बिग लायंस। तो इसीलिए जगह जगह सेंटर्स भी शुरू किए गए हैं। एंड फोर्थ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी इंडिया की है वो प्राइस राइज भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम इज देयर। इसके लिए क्या किया सरकार ने, कंट्रोल प्राइस राइज करने के लिए, प्राइस पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि गवर्नमेंट गिर जाती है अगर अनियन जैसी चीज़ जो कि रोज़ खाने में आती है, अगर उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट गिरी थी 90s में, यू जस्ट गो थ्रू हिस्ट्री। तो अगर जब महंगाई बढ़ती है और खासकर बेसिक चीज़ों की, तो इवन गवर्नमेंट कांट रन, पीपल गो अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट का क्योंकि क्या उद्देश्य होना चाहिए, गवर्नमेंट किस लिए होती है, क्योंकि आम जनता को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो एक मुद्दा जो होता है वो है राइज, कंट्रोल प्राइस राइज का भी होता है, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें करती है, किसके फेवर में, फार्मर्स के लिए, है ना। तो क्या करती है, सबसे पहले हेल्प फार्मर्स। हाउ इट हेल्प्स फार्मर्स, बाय प्रोवाइडिंग, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आपके जो फार्मर्स को सीड्स दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, खाद दी जाती है, तो ये सब कम सब्सिडाइज्ड रेट में दी जाती है, सस्ता दिया जाता है, जिससे वो लोअर प्राइस पे अनाज उगाएं और फिर उनको बेचें, जिससे उनको लागत कम हो, उनका कॉस्ट कम पड़े, एंड दे गेट मोर ऑफ प्रॉफिट। फिर इसके बाद स्टोर हाउसेस बिल्ड करती है, मतलब गोडाउन्स, स्टोर हाउसेस बनाती है। एंड इसके अलावा भी एक और गवर्नमेंट का काम होता है कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखना, जिससे कोई होर्डिंग ना करे, कीपिंग स्ट्रिक्ट विजिलेंस, ओके। ऑन व्हाट, ऑन mal practices, on anything that is happening wrong. Okay, so basically these are the 5 big problems that government deals, these are the challenges. Okay, poverty and employment are related with each other. अगर हम employment देंगे तो obviously poverty कम होगी. Okay, education, health, control price, and one more is there, achieving higher economic growth. After all this, there is another problem कि हम लोग को growth की तरफ जाना है. So for this government, what is government doing? Small scale industries launch की जा रही है, large scales liberalization हो रहा है, okay, and privatization पे भी government focus कर रही है कि ठीक है, आप लोग अगर कोई अपना कुछ setup करना चाहते हो तो self employment की तरफ you can go. Okay, so government is encouraging the use of better inputs in the form of better seeds and fertilizer to the farmers, and it is encouraging small scale industries. Okay. And also it is increasing your infrastructure. I hope this chapter is clear to all of you. Okay, thank you so much.